There seems to be a fresh row as far as Bihar is concerned, and the reason that we're saying this is because the Bihar Education Department has in fact now reduced the number of festive holidays in government schools. Earlier they were 23. Now we're understanding they've been reduced to just 11, and this has now resulted into a political war of words because the BJP is now hitting out at the current ruling government in Bihar, and they're seeing this as appeasement politics. Reactions that are coming in from the BJP are saying that Hindu festivals in fact have been cancelled, leaves there have been cancelled, and that is why they're seeing this as appeasement politics. So as I pointed out, this entire move by the Bihar Education Department has now erupted into a fresh political controversy. Let's first bring in our colleague Saurabh Rathore to try and get better context. Saurabh, good morning. Good to have you with us. I want to understand first, when the leaves have been reduced from 23 to 11, could you talk to us about which are these leaves that have been done away with? 40 leaves have been cancelled, including one Sunday. So out of 25 now, 14 leaves have been cancelled, and especially these leaves are on Janmashtami, Teej Fast, Jitiya, Durga Puja, Diwali, Chitragut Puja, then again Guru Nanak Jayanti, Chhat Puja. So in all those the festivals where the leaves were granted for 3 to 5 days, or in fact in Chhat more than 5 days was granted, but this shortening of leaves have again put ACS KK Pathak of Education Department again in dock, because he has been issuing orders which are controversial, and the Teachers Association as well as the teachers of Bihar are fully they are in great anger, and they are complaining that if these leaves are if this order is not rolled back, they are going to sit on dharna, and they are going to boycott teaching in the state, because it's a matter of their religion, and also the festivals like Chhat Puja and Teej and Jitiya, these all festivals are done mainly by women, and because these are tough festivals, so women need rest, and but shortening of their leaves has again sparked a row, not only within the teachers, but the political success has also started, wherein BJP, they are blaming the Nitish government of playing appeasement politics, because all the leaves that are being cancelled are of Hindu festivals. So now, although the RJD is not supporting such move by the ACS, and they are saying that any officer has no right to cancel leaves, because leaves are made by the government, and the government decides which leaves have to be given. So they are going to review this order, and but the harm is already done, as we have seen. Saurabh, I'll just request you to stay on with us. We in fact have Samrat Chaudhary, who's the state BJP president, also now joining us on the broadcast. सर, बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए. आप कैसे देखते हैं जिस तरह का डायरेक्टिव आया है बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से? देखिए, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई है. ये आप पूर्णिया में इस तरह का मामला उठता है तो आप कभी बोलते भी नहीं है. सरकार के तरफ से इस पर कोई आदेश नहीं आता है, क्योंकि वहां पर शुक्रवार के दिन प्राथमिक विद्यालय में छुट्टी दी जाती जी. लेकिन बिहार में अचानक इन लोगों ने, ये शेड्यूल तो बना हुआ था, ये मार्च में शेड्यूल तय होता है और अप्रैल से लेकर मार्च तक के लिए तय रहता है जी. अचानक ये लोगों को, क्योंकि अभी नीतीश बाबू को प्रधानमंत्री बनने का सपना देखना है, इस चक्कर में इन लोगों ने तुष्टीकरण के काम किए हैं. आज जन्माष्टमी के दिन कौन बच्चे आएंगे पढ़ने के लिए? दुर्गा पूजा के दिन कौन पढ़ने आएगा बच्चा? हमारे यहाँ छठ बहुत महत्वपूर्ण होता है, जीतिया हमारे यहाँ महत्वपूर्ण होता है, गुरु नानक जी की जयंती के दिन कौन बच्चे यहाँ पढ़ने आएंगे जी. ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण वाला निर्णय है. सरकार को तुरंत इसको वापस लेकर, क्योंकि हम यदि शिक्षक को ही गलत शिक्षा देंगे तो वो बच्चों को क्या सिखाएंगे? सर, अभी हमारे जो सहयोगी हैं वो हमें बता रहे थे कि जो आरजेडी है वो भी इस डायरेक्टिव से काफ़ी खुश नहीं है, और वो भी अब कोशिश करेंगे कि ये डायरेक्टिव को वापस लिया जाए. इस समय बीजेपी की क्या डिमांड है?
नहीं, हम लोग एकदम स्पष्ट तौर पर ये सारे निर्णय को तुरंत वापस लेना चाहिए और शिक्षक को किसी भी हालत में तुष्टीकरण के चक्कर में नहीं पढ़ाकर उनको सिर्फ बच्चे को पढ़ाने का काम देना चाहिए। आप बोरा गिनवाने का काम, बोरा बेचवाने का काम शिक्षकों से कर रहे हैं, शराब का बोतल खुजवाने का काम शिक्षक से कर रहे हैं, जनगणना का काम शिक्षक से करा रहे हैं, तो वो पढ़ाएंगे कब? पढ़ाने के लिए उनको समय देने का काम करना चाहिए। जी सम्राट जी हमारे साथ बने रहिए। आई वांट टू टेक अ रिएक्शन फ्रॉम द आरजेडी आल्सो। वी हैव शक्ति यादव ऑफ द आरजेडी आल्सो नाउ जॉइनिंग अस। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये जो नया डायरेक्टिव आया है हमें इसके बारे में कुछ बताइए। जो बीजेपी है वो कह रही है कि ये तुष्टीकरण हो रहा है, हिंदू फेस्टिवल्स पर जो छुट्टियां हैं उनको क्यों काटा गया है? नहीं ना, बिल्कुल दो बातें एक साथ नहीं हो सकती। आप जब ये कहते हैं कि बच्चों की पढ़ाई करने के बजाय टीचर लग जाते हैं अन्य कार्यों में, वो देश भर के शिक्षक लगते हैं, जनगणना का इलेक्शन का काम में बताने की जरूरत नहीं। अगर छुट्टियों को अगर लेकर के देखेंगे तो कुछ ऐसे फेस्टिवल है जिन फेस्टिवलों में रात का काम होता है, दिन से कोई मतलब नहीं होता, और बच्चों की पढ़ाई उसमें अगर पढ़ाया जाए बच्चों को तो हमें नहीं लगता है कि इसको कोई अलग एंगल से देनी चाहिए। लेकिन अगर कोई जिद करता है कि नहीं ये छुट्टियां रद्द होनी चाहिए तो सरकार देखेगी। मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में सारी चीजें गई है, लेकिन शिक्षा विभाग ने जो जारी की है तो ये तो बच्चों के हित में किया गया है। और बच्चों को विशेष करके देखिएगा, बिहार के अंदर में एक सबसे बड़ा चीज खुल करके सामने आया कि नियमित रूप से जो शिक्षक हैं वो विद्यालय पहुंचने लगे। शनिवार रविवार की छुट्टियां सप्ताह में तो बच्चों को रहते ही रहती है, लेकिन फेस्टिवल के कुछ ऐसे फेस्टिवल जो जितिया, जिसमें खा करके सिर्फ सुबह में चल जाना है, उस फेस्टिवल का छुट्टी का कोई बहुत मतलब नहीं रह जाता। अब रहा सवाल आपको जन्माष्टमी, तो रात की पूजा होती है, तो ऐसे कई त्योहार हैं जिनको रात्रि की पूजा, जिनके बच्चों को पढ़ने लिखने से कोई अलग करके नहीं दिखनी चाहिए। बाबत भी अगर कोई इसे तुष्टीकरण कहता है तो तुष्टीकरण तो नहीं है। अगर ये मुस्लिम कहे कि तुष्टीकरण है तो समझ में आता है, लेकिन हिंदू कहे कि तुष्टीकरण है तो ये मुझे समझ में इसलिए नहीं आता कि तो बच्चों के भविष्य के लिए है, और ये बच्चों के भविष्य के हित में अगर रखा गया है। अगर हम छुट्टियों में कटौती करते हैं, ज्यादा उनको हम अवसर देते हैं विद्यालय पहुंचने का, तो हम तो क्वालिटी एजुकेशन की जो हमारी परिकल्पना है, जो कमिटमेंट है, उस दिशा में चूंकि 17 वर्षों तक तो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी। शक्ति जी, बीजेपी का ये कहना है कि जब ये जो एजुकेशन विभाग है और जो डिपार्टमेंट है, इन्होंने जो ये डिसीजन लिया है, ऐसा क्यों है कि पहले जब 22 या 23 जो छुट्टियां थी उनको जब 11 किया गया है, जब 11 किया गया तो जो छुट्टियां काटी गई वो सिर्फ हिंदू फेस्टिवल्स पे ही क्यों काटी गई हैं? बिल्कुल, देखिए, हिंदू फेस्टिवल में होली नहीं काटा जा सकता है, दशहरा नहीं काटा जा सकता है, छठ नहीं काटा जा सकता है। कुछ ऐसे फेस्टिवल, जिन फेस्टिवलों को आप देखेंगे कहीं से काटने की जरूरत नहीं है। तो जो फेस्टिवल, अब मान लीजिए ईद बकरीद नहीं काटा जा सकता है, तो बाकी अब 1 महीना रमजान रहता तो थोड़ी छुट्टी रहता है। 1 महीना रमजान में कोई छुट्टी थोड़ी रहती है। इसलिए तुष्टीकरण को इस रूप में कैसे देख सकते हैं? अगर हम इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रेन, अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, बिहार में एक बड़ा परिवर्तन हुआ है। आप जाकर के गांव कस्बों में उन गार्जियनों से पूछिए, उन अभिभावकों से पूछिए। 17 वर्षों तक तो थी भारतीय जनता पार्टी, इन चीजों को कभी नियमित रूप से शिक्षक पहुंचते थे क्या? पूरा बिहार जानता है कि नहीं पहुंचते थे। आज ये देन है तेजस्वी जी ने जो कमिटमेंट किया था कि हम पढ़ाई, करवाई, सुनवाई, दवाई, हम सब चीजों पे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अमूलचूल परिवर्तन के लिए वक्त की आवश्यकता होती है, धीरे धीरे चीजें स्थापित हो जाएगी। ओके, शक्ति जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।